So let's start today's lecture. Basically, it is about interrupts. और किसी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है ना, थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा इधर कर दो। हाँ, ठीक। चलो सही है, ठीक है। तो इंटरप्ट्स की बड़ी अच्छी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि व्हाट आर इंटरप्ट्स। से यू वांट टू यू नीड सम important medicine which is short in the market, is not available in the market. So what you can do is you go to a shop, a medicine, pharmacist, and you ask for the medicine, and they say it's not available. So maybe you can ask for the phone number and come home, and after every hour or every 2 hours or every 4 hours, you ring the shopkeeper and ask if the medicine has arrived. So that's one way. The second way is that if the shopkeeper is cooperative, uh, and you can give your phone number to him. In that case, when the medicine arrives, he can call you. The medicine is here. In that case, uh, so the first method where you are calling the shopkeeper every 1 hour or 2 hours is called polling. So you poll the shopkeeper. The second method, when the shopkeeper calls you when the medicine has arrived, is called interrupt. So the first method has the drawback that you are spending so much time in your polling, you calling the person, and you are calling again and again. What is the drawback of the second? Second has a lot of positive aspects, because it saves a lot of time from you to calling the shopkeeper. But the drawback is that you may be doing something very important. Like I'm right now, I am lecturing, and I suddenly get a phone call from the shopkeeper that the medicine has arrived, and I have only limited. So if you don't come very soon, I'll run out of them again. So what do you do? So that's the part of the interrupt. So what you do is you can stop wherever the class is. Maybe you can ask them to go to sleep or whatever, and you run down to the shopkeeper, do your uh, interrupted task, the task that has interrupted you, come back and start right where from the lecture was stopped. So it is like, if you take out the time that it takes, if you don't consider that for you to go to the shop and bring the medicine, for the class it will look like as if nothing has happened. They would think they won't be they will never notice that there was an interruption. Only difference will be that you will have suddenly there will be medicine on the table. So no medicine, and after the interrupt, medicine on the table. So this is what interrupts are. So interrupts play a very, very important role in embedded system or any computer. Interrupts are very important, be it with desktop, laptop, whatever it is. Sorry, desktop or embedded processor.
all of them have some mechanism to handle interrupts. Interrupts are a pretty big thing, and a large portion of the a large attention has to be paid to uh, interrupts and their working. Uh, Briefly speaking, uh, in every processor there is something called IF, uh, called interrupt flag. So before executing any instruction, processor before executing any instruction. So before doing anything, the processor looks at the interrupt flag. If interrupt flag is 1, what will happen? That this is processor program counter of the processor. The program counter. So there is a multiplexer here. So this is a parallel load of the program counter. In normal execution, this input is 0, and the processor uh, executes next instruction in the program. However, if interrupt flag is 1, if an interrupt flag is 1, this is the multiplexer, 2 to 1 mux. If interrupt flag is 1, it will go to this address. This is called interrupt vector. Interrupt address. So it will not execute the next instruction. It will go to interrupt address. So the next instruction will not be executed. The next output of the program counter will be the interrupt first instruction in your interrupt service routine. Whatever is the interrupt program is called interrupt program. So there will be an interrupt program. So you have a interrupt program which has wired output, my interrupt, void, or so here there is the first instruction, say count plus plus. If count greater than limit count equal to 0. So in the main program, let me just show you. In the main program, uh, you have a display count.
सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ जी, पूछे। सर ये जो 2 to 1 मक्स की आउटपुट है, ये आप हाँ प्रोग्राम हाँ काउंटर में भेज रहे हैं, क्योंकि हाँ सर हाँ। अभी इंटरप्ट एड्रेस हमें चाहिए, क्योंकि अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 आ गया तो हमने वो हाँ हाँ। एड्रेस कंप्यूट नहीं करना। एड्रेस माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स्ड होता है। अच्छा सर। एड्रेस जो है ना माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स होता है। तो यूं समझे कि इसके अंदर ये इंटरप्ट का जो है ना ऑलरेडी फिक्स होता है कि जो ही इंटरप्ट आए बस ये फिक्स्ड एड्रेस है, उस पे चले। अच्छा ठीक है, सही है सर, ठीक है। सर ये आप इंटरप्ट फ्लैग 1 आने के बाद की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं? ये होता ही है कि आपने ऊपर सारा सेट कर दिया, वो मैं बताऊंगा कैसे। आपने इंटरप्ट सेट कर दी है, इंटरप्ट को आर्म कर दिया है कि आप कहते हैं कि प्रोसेसर को कि मेरी इंटरप्ट लगी हुई है, मुझे इंटरप्ट आ सकती है। और उसके बाद आप ये वाला कोड लिख देते हैं, इसके साथ आप लिख देते हैं यूजिंग इंटरप्ट। इसमें मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं हम। आई विल लुक एट हाउ टू मेंशन यूजिंग इंटरप्ट। इसका इस कीवर्ड का मतलब होता है कि ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस पे, जो ये वाला एड्रेस है ना इंटरप्ट का एड्रेस, उस प्रोग्राम उस जगह पे ये वाला कोड डालो, सो दैट व्हेन एवर इंटरप्ट अकर्स ये काउंट प्लस प्लस हो जाए। ठीक है। तो ये अब ये एक सेपरेट टास्क बन गया है। ये वाला टास्क जो है ना इसका इससे कुछ ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर वाइल वन है, इसके अंदर क्या हुआ है, प्रिंट काउंट ऑन एलसीडी, डिले सम टाइम। अब ये कि यहाँ अगर आम आदमी दिखेगा वो तो कहेगा यार काउंट तो वेरी नहीं कर रहा, तो काउंट किया एलसीडी पे तो सेम ही प्रिंट आएगा। यहाँ पे आपने लिखा हुआ काउंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपने काउंट काउंट यहाँ पे बताएं क्या डिस्प्ले होगा काउंट पे, डिस्प्ले पे एलसीडी पे क्या प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा एलसीडी पे, काउंट सर ही आएगा। इंटरप्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, वरना वही रहेगा। वही रहेगा, यस। अब ये आपने ये गाड़ी है, इसकी ये जो है प्रोसेसर है, उसकी एक पिन होती है जिसको कहते हैं इंटरप्ट पिन। जब इसके ऊपर हाई एज आता है तो इंटरप्ट फ्लैग जो है वो क्या होता है, वो 1 हो जाता है। इसको लो एज पे भी कर सकते हैं, हाई एज पे भी कर सकते हैं। अभी आप अज्यूम करें कि ये इंटरप्ट है, कई काफी सारी इंटरप्ट होती है प्रोसेसर की। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है, अ, तो अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो इंस्ट्रक्शन फ्लैग 1 हो जाता है। अब ये क्या होगा, जो ही ये इंस्ट्रक्शन फ्लैग 1 होगा, अब यहाँ पे आपने एक सेंसर लगाया हुआ है, फर्ज करें कोई सेंसर लगा हुआ है। सेंसर जो है ना वो गाड़ियों को देख रहा है कि गाड़ी तो नहीं कोई गुजरी। गाड़ी इसके आगे से गाड़ी तो नहीं गुजरी कोई। गाड़ी गुजरेगी तो ये पल्स आएगी, ये पल्स आएगी तो एक्सटर्नल इंटरप्ट की पल्स आएगी। अगर इंटरप्ट आपने अपने सॉफ्टवेयर में कहा हुआ कि इंटरप्ट मैंने चलानी है तो फिर ये कोड चलेगा, और ये कोड चलेगा तो ये काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये वाला टास्क जो है इन्हें पैरेलल में रन करेगा। यूं समझ लें कि ये टास्क क्या है, ये टास्क है आपने बेसिकली
एक बंदा रख लिया है जो कि गाड़ियों को गिने। आपका तो कोड सिर्फ ये नहीं हो सकता है बहुत बड़ा कोड हो कि अगर इतनी गाड़ियां हो गई हैं तो ये करो, अगर गाड़ियां हो गई हैं तो कार पार्क को शो करो कि फुल हो गया है या एम्प्टी हो गया है या क्या हो गया है। तो आपका तो प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा, सिर्फ इस काउंट को लेके उसने काफी काम करने होंगे। ये तो सिंपलेस्ट सी बात है की हुई है। लेकिन आप अपने कोड के अंदर आप बारी बारी कैसे चेक करेंगे कि सेंसर के आगे से गाड़ी गुजरी है या नहीं? आप हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इधर उधर बिजी हुए हैं, 2-3 गाड़ियां गुजर जाएं और आपका अकाउंट ही ना हो। तो ये वाली चीज जो है ना, इज जस्ट वन अमेजिंग फीचर ऑफ these external interrupts or interrupts, that you basically hire a guy, hire a person who does the job in the background, for some job for you in the background. So that's the basic idea of the interrupt, that you basically have one thing running in the background. This external interrupt is external because it is coming right through the hardware. If hardware has an edge over here, only this interrupt occurs. Similarly, there are a timer interrupt flags also. So that can also activate interrupts. So whenever the timer overflows, it can also activate interrupt. So there are many ways a processor can be interrupted, many ways. And all of them are very helpful, very important. Timer interrupt can be used to interrupt the processor after every second. So it will interrupt whatever you are doing. No matter processor is, any loop is running or anything is happening, it will interrupt the process exactly after 1 second. It's like a guy, a person you have hired कि यार तुमने मुझे 1 सेकंड के बाद मुझे बताना है कि सेकंड हो गया, और वो बंदा टाइमर है, उसका प्रोसेसर से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलहदा से काउंटर है जिसने काउंट करना है। So you can be sure that I will be interrupted exactly after 1 second. So the software has to make sure that the interrupts, once they run, whatever change they do, I mean, interrupt can occur, but it must change some global variable. That variable is visible to in the main. ग्लोबल वेरिएबल कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करते, ये वाला काउंट जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल and this is the shared resource between this task and this task. So when the count increments, it changes here. So this is the shared variable between this. This is the only way they can communicate with each other, through this count variable. So count variable, yes. सर जो हमने यूजिंग इंटरप्ट जो आपने लिखा है उसके हाँ, थ्रू आपस में कनेक्टेड है कि वो हमेशा बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, इसका ये मतलब है, इस कीवर्ड का मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मारिया क्या लिखते हैं इंटरप्ट के लिए, तो याद है? जी सर, मुझे कुछ आपको याद है कि इंटरप्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं कि ये वाली जो फंक्शन है या प्रोसीजर है ये इंटरप्ट पे चले, कोई याद है कैसे करते थे? नहीं सर, अभी तो मुझे उसका एग्जैक्ट वो याद नहीं है। अच्छा चलें, आगे आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने काफी ज्यादा सिस्टम में प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उस किसी में इस तरह से करते हैं, किसी में किसी तरह से करते हैं, किसी से किस तरह से, बट देर इज वन वे ऑफ टेलिंग दिस टास्क शुड बी इन्वोक्ड व्हेन इंटरप्ट अकर।
this task should be invoked when interrupt occurs. So there is a way of telling. There can be another task like square root task. There could be a square task. There could be a sign procedure call. There could be some add n number call हो सकती है कोई, लेकिन चूंकि उसके साथ ये यूजिंग इंटरप्ट नहीं होगा, वो उसको उनको सॉफ्टवेयर से ही आप कॉल कर सकते हैं. ये सर वाला आई जो है थिंक इसको वॉइड आप इंटरप्ट सॉफ्टवेयर में होता है, वॉइड इंटरप्ट. वाइड इंटरप्ट, हाँ वाइड, यहाँ पे आप लिख देते हैं इंटरप्ट. सर जी सर इसकी मतलब ख़ास फ़ायदा क्या है अगर हम बस वो सेंसर से जो इनपुट आ रही है जो हाँ. IF1 है उसको हम किसी भी नॉर्मल पोर्ट में कर दें और नॉर्मली इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके एक ग्लोबल वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दें. तो आप उसी खास काम में लग रहेंगे ना यार. क्या मतलब सर? आपका वाइल वन है, आपने वाइल वन में क्या करना है? वाइल वन इफ पोर्ट बी डॉट बिट 0 हम्म, इक्वल इक्वल 1, इसका मतलब गाड़ी आ गई है, ठीक है ना? यस काउंट प्लस प्लस, ठीक है. यस. अब मसला इसमें क्या है कि गाड़ी 1 घंटे में आनी है. अच्छा सो वो बार बार चेक करेगा. वो ये इसमें कितना टाइम जाया कर, 1 घंटे में इसे कोई करोड़ों दफा चेक कर लेना कि गाड़ी तो नहीं आई, गाड़ी तो नहीं आई, गाड़ी तो नहीं आई. ऑलराइट सही है. और दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जितनी देर में ये गाड़ी सामने से गुजरे उतनी देर ये पोर्ट बिट 1 ही रहेगी, तो एक ही गाड़ी को वो कई दफा काउंट भी कर लेगा. ठीक है सही है. तो लेकिन ये कि ये काम जो है सॉफ्टवेयर में करें तो ये तो ह्यूज वेस्ट ऑफ प्रोसेसर रिसोर्सेज. प्रोसेसर को आप, मैंने पहले भी कहा कि आप जो है ना रूटीन टास्क जिसमें वो अपनी दुम के पीछे भागता रहे, वो आप उसको करने से अवॉइड करते हैं. स्वाय वाइल वन तो है ही है ना. तो आप कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो मर्जी हो, आप प्रिंट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहे हैं, और बड़े काम कर रहे होंगे. यहाँ सिर्फ ये काउंट तो नहीं ना आप इंक्रीमेंट कर रहे. तो इतने बड़ा कामों के बीच में आप नहीं चाहते कि वो गाड़ी मिस हो जाए. और आप अगर वाइल वन इतनी लंबी है, आप शुरू में लिख देते हैं, चेक करते हैं इफ पोर्ट बी डॉट बिट 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद आपका कुछ 50 मिली सेकेंड का कोड है, और वाइल वन वापस जब आता है उस वक्त तक ये हो सकता है कि गाड़ी आगे से गुजर भी गई हो. तो आपने तो यहाँ ये कोड रन होगा तो तभी आपको पता लगेगा गाड़ी आई है कि नहीं. अब आपने सिर्फ इतना सा तो प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर नहीं बनाना जो सिर्फ गाड़ियां काउंट करता रहे, और बेशुमार उसमें लंबा सा प्रोग्राम होगा जिसमें और भी आपने बहुत ज्यादा काम करने, सिर्फ यही काम नहीं करना. इस काम के करने के लिए, सिर्फ एक ही काम को करने के लिए आपने अगर उसको यूज किया, दैट विल बी ओवरकिल. तो आपने और भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, या आपने किसी डेंसिटी, किसी एक में डेंसिटी आपने काउंट करनी है कि टोटल कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितनी गाड़ियां गुजरी हैं. तो ये सारे काम करने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोग्राम चाहिए, और उसमें आप हर वक्त सिर्फ यही चेक करते रहे गाड़ी तो नहीं आई, गाड़ी तो नहीं आई. दैट वुड बी अ लॉट ऑफ वेस्ट फॉर द कंप्यूटर रिसोर्स. सर आप ये दोबारा बता सकते हैं कि अगर हम इंटरप्ट यूज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, वो कितनी दफा चलेगा? वो कब चलेगा? जब गाड़ी एक गुजरेगी तो ये क्या होगा, इस सेंसर की आउटपुट क्या होगी? गाड़ी गुजर, सामने गाड़ी है तो फर्ज करें सेंसर की आउटपुट है 1 + 5. तो जब गाड़ी गुजरेगी तो इस तरह की एक पल्स जनरेट होगी ना यहाँ पे. यस सर. अब ये पल्स का जो हाई होती है ना पल्स, ये क्या करेगी? ये इंटरप्ट फ्लैग को क्या करेगी? 1 कर देगा. हाँ, तो यहाँ पे आपको फिर इंटरप्ट फ्लैग इक्वल टू 0 करना पड़ता है, याद रखें.
अच्छा ठीक है सर। सर तो जैसे ही इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा तो हम इस void myInt फंक्शन में चले जाएंगे। हाँ, इसमें चले जाए। ठीक है सर। ये 1 नहीं होता तो ये कभी नहीं चलेगा। मतलब फर्ज करें 2 दिन कोई गाड़ी नहीं गुजरती तो हम इसमें जाएंगे ही नहीं। ओके सर, ठीक है, सही। मेरी मेडिसिन, ये मेडिसिन है कि अगर जब तक मेडिसिन की इंटरप्ट नहीं आए मैं इधर जाके मेडिसिन लेने नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं बार बार मेडिसिन चेक कर रहा हूँ कि आई है कि नहीं, आई है कि नहीं मेडिसिन। ये जब मेडिसिन आई है, इंटरप्ट सेट हो गया, मैं इधर जाऊंगा और चेक करूंगा कि मेडिसिन आई है, उस तभी जाऊंगा। तो एक जैसे फायर अलार्म के साथ अगर आप सेंसर लगा देते हैं इंटरप्ट वाला, तो आपको बार बार फायर अलार्म को सेंस करने की जरूरत नहीं है। जो ही फायर लगेगी ये सेंसर ऑन हो जाएगा। और फायर तो आपको पता ही है, मतलब ये कि फ्री सेंटर तो नहीं है कि रोज ही आग लगी हो, फायर अलार्म बज रहा हो। क्या ख्याल है? तो किसी बिल्डिंग में तो काफी सालों के बाद, अल्लाह ना करे, हो सकता है कभी आग लग जाए, तो उस वक्त फायर अलार्म ने बोलना है। आप जो है ना हर वक्त यहाँ पे बैठ के फायर अलार्म को चेक कर रहे हैं। तो आपने हो सकता है 50 कमरों में, 100 कमरों में फायर अलार्म लगाए हुए हैं, तो आप हर एक को बारी बारी चेक नहीं कर सकते। आप सबको इंटरप्ट से अटैच कर देते हैं ताकि जो ही इंटरप्ट आए आपको पता लग जाए कि कहीं आग लगी है। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरप्ट्स। तो यही आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर इज बेसिकली रिगार्डिंग दी इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट्स जो है उसकी अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे, आप ऑलरेडी पोस्टेड इट ऑन LMS। तो इंटरप्ट्स के साथ क्या है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैं आपको फिर कभी शायद बताऊंगा कि ये प्रोग्राम काउंटर की कंप्लीट हार्डवेयर क्या होती है। तो इंटरप्ट्स के अंदर मैं एक आर डाल देता हूँ, बुरा ना मनाए, तो 2 आर बार बार करना पड़ता है मुझे। तो इंटरप्ट्स के अंदर क्या होता है, टाइप्स होती हैं। जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट, hardware interrupt, those are the interrupts that are triggered by some hardware like this one. तो कोई पल्स आई हुई है तो उससे इंटरप्ट फ्लैग सेट हो गया, दैट इज दे आर कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। जब आप माउस का की दबाते हैं माउस पे तो हार्डवेयर इंटरप्ट आती है। जब आप कीबोर्ड पे की दबाते हैं तो हार्डवेयर इंटरप्ट आती है। जो आपकी की जो है दैट इज सेव्ड इन कीबोर्ड बफर, and that key is then read by whatever is the active application। जो भी वर्ड खुला हुआ है या जो भी है वो की उस एप्लीकेशन को शेयर हो जाती है, तो शेयर रिसोर्स बन जाती है वो की। जो एप्लीकेशन खुली है एक्टिव एप्लीकेशन के साथ वो की, तो जब भी आप इंटरप्ट दबाते हैं उसको किसी एप्लीकेशन से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में एक टास्क चलता है जो आपकी की लेके किसी कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेट कर रही होती है कि कब कोई इवेंट हो। उन इवेंट में ये की प्रेस भी होता है तो वो की पकड़ लेती है। वरना कीज जो है वो एक प्रोसेसर का एक ही बफर है जिसमें सारी की प्रेस होती रहती है। अगर कोई भी एप्लीकेशन ना खुली हो, आप कीज दबाएंगे तो वो कीबोर्ड बफर फुल हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट शाउटिंग के ये बस करो भाई, क्यों की दबाई हुई है, अगर आप गलती से कोई बुक रख दें कीबोर्ड के ऊपर।
So these are different interrupt types. हार्डवेयर इंटरप्ट, एक तो ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती है, वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, मे बी सम टाइम लेटर। एक है मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल स्लैश नॉन मास्केबल इंटरप्ट, उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर है उसके एक अंदर एक इंटरप्ट की हार्डवेयर होती है, पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो इसकी आउटपुट होती है इंटरप्ट फ्लैग, कि प्रोसेसर को इंटरप्ट करना है या नहीं। यहां से इंटरप्ट के डिफरेंट सोर्सेज आ सकते हैं। यस, सर थोड़ा सा थोड़ा नीचे कैमरे करो यार, किधर गए भाई अहमद? नीचे करो, नीचे थोड़ा सा। तो इंटरप्ट की जो हार्डवेयर है, ये नजर आ रहा होगा, जरा जूम करना। तो जब इंटरप्ट आती है तो ये हार्डवेयर क्या करती है, इसके अंदर काफी सारे सोर्सेज होते हैं इंटरप्ट के। काफी सारे सोर्सेज होते हैं इंटरप्ट के, एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट, पता नहीं बेशुमार इंटरप्ट, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एंड गेट लगा होता है। ये क्या करता है, इसको कहते हैं मास्टर एनेबल कह सकते हैं आप। अभी मैं इसका नाम मास्टर एनेबल करता हूं, मास्टर एनेबल। अगर मास्टर एनेबल जो है वो जीरो होगी तो क्या होगा इंटरप्ट हार्डवेयर को? अगर मास्टर एनेबल जीरो होगी तो क्या होगा? एनीवन? अब्दुल्ला अफजाल, अगर मास्टर एनेबल को जीरो कर दूं तो क्या होगा? सर जीरो आएगा आगे। आगे जीरो आएगा, इसका मतलब है कि कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं कर यस सकेगा। सर। So that way you can, if you are not, शुरू में अभी आपने सिस्टम स्टार्ट करना है, आपको 1 घंटा ज़्यादा कुछ सेटअप करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में जाके, और उसके बीच में आप चाहते हैं कि कोई आपको भी इंटरप्ट ना करे। जैसे मैं आता हूँ, मैं अभी लेक्चर सेट कर रहा हूँ, आपने वीडियो ऑन कर रहा हूँ, कैमरा लगा रहा हूँ, सारे कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि अभी कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन वगैरह ना पूछने शुरू करे, तो मैं माइक बंद कर देता हूँ ना। तो ये सॉफ्टवेयर मास्क कर दिया, सॉफ्टवेयर में आपको मास्क कर दिया, अब आप मुझे कुछ कह नहीं सकते। सेम केस हियर, दिस इज दिस एंड गेट मींस कि वंस दिस इज वन, नो इंटरप्ट कैन इंटरप्ट यू। जब इंटरप्ट ये वन होगा तो फिर इनमें से जो इंटरप्ट होगी वो प्रोसेसर को इंटरप्ट कर लेगी, इनमें से कोई भी इंटरप्ट होगी वो प्रोसेसर को इंटरप्ट कर सकती है। अब इसके अंदर भी फर्दर उन्होंने डिवाइड किया होता है। इसके अंदर भी फर्दर डिवाइड किया होता है कि ये अगर टाइमर इंटरप्ट है, फर्ज करें एक्सटर्नल इंटरप्ट है, इसके आगे भी एक गेट लगा होगा। बिफोर इट कम्स हेयर देयर इज अ गेट हेयर आल्सो, एंड दिस इज एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो एनेबल फ्लैग। और इस तरह से आप हर इंडिविजुअल इंटरप्ट को, तो इस तरह से हर इंटरप्ट जो आती है उसके साथ उसका एक एनेबल होता है। हर इंटरप्ट जो आती है यहाँ पे टाइमर इंटरप्ट, टाइमर जीरो इंटरप्ट अगर आ रही है
अगर तो टाइमर 0 इंटरप्ट तभी आएगी अगर ये इंटरप्ट इनेबल हुई हुई। तो ये स्टेट कैचर से पहले लगी होती हैं? ये वाला स्टेट कैचर नहीं है, ये सर वो बेसिकली और है कि कोई भी अगर इनपुट 1 होगी, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है, ये टाइमर 0 इंटरप्ट है, ये टाइमर 1 इंटरप्ट है, ये टाइमर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है, टाइमर 3 इंटरप्ट है। इससे सबकी इंटरप्ट होती हैं। सर वो जो फिर आप जो बना रहे हैं वो कहाँ लगी होगी? ये यहाँ पे लगी होगी। ठीक है। तो डबल एंड गेट, ये यहाँ पे आने से पहले भी इंडिविजुअल कंट्रोल है। अगर ये 0 है तो ये वाली इंटरप्ट 0 है, तो ये आर गेट की एक इनपुट 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली इंटरप्ट डोंट केयर हो जाएगी, इसके ऊपर प्रोसेसर इंटरप्ट में नहीं जा सकेगा। सेम केस हेयर, अगर तो टाइमर इंटरप्ट इनेबल 1 है तो फिर ये वाली आउटपुट जो है ये यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, वो इसको इंटरप्ट करेगी, वरना टाइमर इंटरप्ट जो है ना प्रोसेसर को इंटरप्ट नहीं कर सकती। आप उसको चलाएं, आप उसको सॉफ्टवेयर में चलाएं, जितना मर्जी चलाएं उसको, वैसे आप उसका इंटरप्ट फ्लैग चेक कर सकते हैं, लाइक यू डिड इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट लैब, कि आप उसका फ्लैग ओवरफ्लो का वेट करें। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। राइट थिंग वुड बी कि आप इंटरप्ट इनेबल करें और जब टाइमर ओवरफ्लो हो तो आपको पता लगेगा कि ये टाइम जो मैंने टाइमर को कहा था कि इतने टाइम के लिए वेट करो या इतना काउंट करो या इतना टाइम के बाद मुझे बताओ कि इतना टाइम हो गया है, so that will then work in, so timer will then work as a background process। उसका काम है काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 हो गया जी, इंटरप्ट करो प्रोसेसर। प्रोसेसर उस वक्त कुछ भी कर सकता हो, could be doing anything। so these are called maskable interrupt। so this is mask। इस मास्क कर दूं, अगर मास्क कर दूं तो फिर ये इंटरप्ट मुझे तंग नहीं करेगी। कुछ नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होती हैं। हर प्रोसेसर में मास्केबल भी होती है, नॉन मास्केबल भी होती है। नॉन मास्केबल जो है ना वो दे बेसिकली दे हैपन व्हेन द प्रोसेसर इज टोटली गोइंग टू डाई। लाइक यू स्विच ऑफ a processor, its voltage slowly comes down। so as soon as it goes from say 5 to 4.5 volt, uh, uh, a non-maskable interrupt is generated, and within few milliseconds processor can save some important data. It can save some very important data on the hard disk, because and that is non-maskable interrupt, which it cannot be stopped। उसकी वजह ये कि अगर उसको भी मास्क कर देंगे और प्रोसेसर मर गया, उसके ब्राउन आउट उसको कहते हैं, ब्राउन आउट इंटरप्ट। ब्राउन आउट का मतलब है कि व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्स and it's after certain level, it means that the processor is going to die। तो इस लाइक कश्ती डूबने से पहले, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, सुना होगा ना आपने ये शेर? नहीं सर, हैं? नहीं सुना हुआ? नहीं सुना। हाँ भाई, क्या शेर है पूरा अहमद? हैं? अब नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये आप देखें, ये उसने किसने गाई हुई है? ये फैज की नहीं है मेरा, हाँ कोई होगा, नासिर काज़मी वो शायद। और गाई किसने है ये? है वतन प्यारे वतन पाक वतन, जिसने गाया? नहीं नहीं नहीं,
नहीं बस नहीं गाया। ये एक और साहब हैं, उन्होंने गाया हुआ है। एनीवे सो ये बात है, ब्राउन आउट यही करती है कि इट्स नो दैट द बोट इज गोइंग टू सिंक एंड लेट्स डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हार्ड डिस्क होती है, उसका हेड जो होता है ना, उसको एक साइड पे पार्क करना पड़ता है। अगर आप उसको पार्क ना करें, आप ऑफ करके अचानक कंप्यूटर उठा के लेके जाएंगे, तो हार्ड हेड जो है ना, वो प्लेटर को टच करके इस तरह रगड़ता रहेगा और उसको खराब कर देगा। So whenever this brownout interrupt occurs, processor immediately tells the hardware के ये अपना हेड जो है, पहले हेड पार्क करना पड़ता था। एक जमाना था जब आपको खुद कंप्यूटर ऑफ करने से पहले बताना पड़ता था कि हार्ड डिस्क को ना उसको शट डाउन करो, प्रॉपरली शट डाउन करो। तो अब ये खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो काफी सारी चीजें। तो ये ब्राउन आउट टाइमर जो है ना, ये काम करता है। So as I said, so these are non-maskable, then maskable interrupt. So interrupt are interrupt का मुकाबला होता है पोलिंग से। पोलिंग और इंटरप्ट, पोलिंग इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है। पोलिंग में अगर आपको काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कोई और नहीं कर रहा, वो काउंट आप खुद ही किसी जगह पे इंक्रीमेंट कर रहे होंगे पोलिंग में। तो वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा रोबस्ट कोड होता है विद पोलिंग। With interrupt, the problem is that interrupt are so unpredictable, and there are so many sources of interrupt that interrupt can you have to do some very very thorough uh, checking of a complex embedded system कि कोई इंटरप्ट का सीक्वेंस ऐसा जनरेट ना हो जो प्रोसेसर को हैंग कर दे या प्रोसेसर भी फंस ही जाए। तो वो भी बात करेंगे कि क्या चीज होती है ये, कैसे ये हाउ कैन प्रोसेसर गेट हैंग्ड बाय एन इंटरप्ट। तो एक और चीज होती है, वो होती है वेक्टर्ड इंटरप्ट। और दूसरी क्या होती है, पोल्ड इंटरप्ट। तो ये भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होती है? वेक्टर्ड इंटरप्ट ये होती है कि उसमें जो प्रोग्राम काउंटर को जो वैल्यू जानी है जब इंटरप्ट आएगी, वो फिक्स नहीं होती। वो एक छोटा सा एक 2-3 लाइन का कोड चलाते ही हैं, उससे इंटरप्ट का पता लगता है कि ये कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलानी है। डेस्कटॉप पीसीज आर बेसिकली वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। आप जब माउस प्रेस करते हैं तो माउस की सब रूटीन जहां पे भी होती है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पे चला जाता है। माउस का जो प्रोसीजर फंक्शन है, उसका कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की बहुत बड़ी, बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की सॉफ्टवेयर है। तो जब की प्रेस करते हैं तो वो की वाला कोड जो है, वो जहां पे पड़ा होता है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस प्रोसेसर को चाहता है कि यहां से स्टार्ट करो। सो दैट इन दैट केस द एड्रेस इज नॉट फिक्स्ड, एड्रेस इज एक्चुअली गिवन बाय द इंटरप्ट आल्सो। सो इंटरप्ट जब आती है तो प्रोसेसर इंटरप्ट को देखता है कि ये इंटरप्ट आई है, कीबोर्ड की इंटरप्ट आई है, उसे कहता है तुमने मुझे इंटरप्ट किया, मुझे बताओ कि कहां पे है तुम्हारा स्टार्टिंग कोड। सर जो आपने पहले हार्डवेयर बनाया था जिसमें आपने कहा था कि 2 आ रही होती हैं और हाँ हाँ 2 to 1 मार्क से एक लाइन सिलेक्ट हो जाती है, तो वो ये वेक्टर इंटरप्ट जो एड्रेस है वो वही चीज है। हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, दोबारा बना देता हूँ, एक मिनट इधर करना यार।
ये डिफरेंसेस उसमें दोबारा बता दें वेक्टर और पोल्ड इंटरप्ट के। वेक्टर इंटरप्ट जो है ना उनको IRQs कहते हैं। IRQ IRQ जब जाती है एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉरी IRQ जब आती है, यहाँ पे वही बना देते हैं हम, ये आपका PC है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम के काउंटर काउंट कर रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। तो यूजुअली जैसे मैंने कहा था आपको कि इसके पास होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसने एग्जीक्यूट करनी, या फिर इसके पास ये आ सकता है, ये है इंटरप्ट का कोड। अब ये इंटरप्ट का कोड जो है ना, या इंटरप्ट वेक्टर इसको कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो होना तो यही चाहिए कि ये कोड फिक्स्ड हो। जो ही इंटरप्ट आई, इंटरप्ट फ्लैग ने इसको जो है पकड़ लिया और ये चला। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा कोड लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और प्लस ये कि आपको एक कंटिगुअस मेमोरी के अंदर जगह सेव करनी पड़ती है। तो इसका इलाज फिर लोगों ने ये निकाला था कि जब इंटरप्ट आती है तो वो इंटरप्ट प्रोसेसर को नहीं जाती, वो इंटरप्ट जो आती है वो सारी टाइप के इंटरप्ट जो है ना वो इधर एक हार्डवेयर होती है उसको जाती है। ये जो है ना ये वेक्टर जनरेट करता है। कैसे करता है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह, तो कोई भी इंटरप्ट है, एक्सटर्नल इंटरप्ट है, कीबोर्ड इंटरप्ट है, एक वेक्टर जनरेट करता है। ये वेक्टर जो है ना वो इधर जाता है फिर कि ये अगर ये वाली इंटरप्ट आई है तो एक्सटर्नल इंटरप्ट का अपना वेक्टर होगा। अगर कीबोर्ड इंटरप्ट आई है तो कीबोर्ड का अपना वेक्टर होगा। माउस इंटरप्ट आई है तो माउस का अपना वेक्टर होगा। नेटवर्क कार्ड की अगर इंटरप्ट आई है तो उसका अपना होगा। तो इस तरह से हर एक का अपना अपना होता है इंटरप्ट वेक्टर। उससे ये होता है कि प्रोसेसर जो है वो इस वेक्टर के हिसाब से कहीं भी जंप कर सकता है एनीवे। तो अब जब प्रोसेसर जो है ना वो स्टार्ट होता है, वो कहीं मेमोरी में कहीं भी माउस की रूटीन डाल देता है, कहीं भी वो कीबोर्ड की सॉफ्टवेयर डाल देता है, प्रोसीजर कॉल हर चीज की डाल देता है। जहां पे उसने डाला होता है वो वाला स्टार्टिंग वेक्टर है ना, वो इस वेक्टर टेबल में वो कर देता है। सॉरी, वेक्टर टेबल कहना था इसको, वेक्टर टेबल में वो पॉपुलेट कर देता है। इसको कहते हैं IVT, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो कहीं आपके कोड में कहीं हो सकता है कहीं यहाँ पर ये माउस इंटरप्ट है, उसका कोई माउस का इंटरप्ट है, उसका कोई स्टार्टिंग कोड होगा यहाँ पे। वो स्टार्टिंग कोड जो है वो इस वेक्टर टेबल में पॉपुलेट कर देते हैं। इस तरह कीबोर्ड की कोई कोड होगा, कीबोर्ड जब भी आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक कोड चलता है, उसके इसकी पहले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो कीबोर्ड के अगेंस्ट उस वेक्टर टेबल में पॉपुलेट हो जाए। तो जब इंटरप्ट आती है तो ये वाला जो है ना इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि की इंटरप्ट आई है तो प्रॉपर इंटरप्ट वेक्टर दे, ताकि ये माउस सॉरी कीबोर्ड की इंटरप्ट चले। जब माउस की इंटरप्ट आई है तो ऐसा एड्रेस दे नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर को कि माउस की चले। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट। अब पोल्ड इंटरप्ट आप क्या पूछेंगे कि वो क्या होती हैं? एनीबॉडी, व्हाट आर पोल्ड इंटरप्ट? एक तो हमने पोलिंग पढ़ी और एक इंटरप्ट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पोल्ड इंटरप्ट। ये क्या बला है?
What is polled interrupt? कोई कोई बता सकता है, कोई सोचे जरा। हाँ भाई, कोई बताएगा कि पोल्ड इंटरप्ट क्या चीज होती है? हाँ जी, हुदा, कोई आइडिया? जमशेद, ईमान, उसामा, कोई आइडिया कि पोल्ड इंटरप्ट क्या होंगी? हैं, सारे चुप हैं। पोल्ड इंटरप्ट में ये क्या होता है? इसमें होता है वॉइड इंटरप्ट, माई ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन ब्रैकेट क्लोज दिस। उसमें ये इंटरप्ट वेक्टर फिक्स्ड होता है। अब वो इंटरप्ट वेक्टर में जो ही कोई भी इंटरप्ट आई, उसने इधर ही आ जाए। यहां पे आके वो फिर देखा होगा इफ टाइमर 0.interrupt flag इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा? यहां से तो नहीं पता लग रहा ना कि आर गेट की आउटपुट किसने 1 की है? पता लग रहा है? आर गेट नहीं बताता आउटपुट पे कि मैं इस वजह से 1 हुआ हूं या इसकी वजह से 1 हुआ हूं। ये सारों में से कोई भी 1 होगा, ये तो 1 इंटरप्ट तो आ जाएगी। तो ये पिक की हार्डवेयर इस तरह से है, पिक की, उसमें वेक्टेड इंटरप्ट नहीं है। पिक में अगर टाइमर इंटरप्ट फ्लैग 1 हुआ है, अब यहां पे आके इस रूटीन के अंदर आप चेक करते हैं कि किसकी इंटरप्ट आई है, किसने आपको इंटरप्ट किया है। इफ टाइमर इंटरप्ट फ्लैग इक्वल टू दिस, डू टाइमर, टाइमर से जो काम करना है वो करो। इफ एक्सटर्नल इंटरप्ट, ये कीवर्ड मेरे मेरे बड़े खराब हैं, प्लीज इन पे ना जाइएगा। हो सकता है जब आप कोड लिखे तो कोई और आपको कोड मिले इनका, तो प्लीज। इफ एक्सटर्नल इक्वल इक्वल 1 रखने की क्या जरूरत है? इफ एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग, तो अगर ये 1 है तो ये वाला कोड चलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पोल्ड है। क्या आप एक दफा इंटरप्ट में चले गए हैं, आप हर इंटरप्ट सोर्स को पोल करके पूछ रहे हैं? तुमने इंटरप्ट किया, तुमने पूरी क्लास में कोई भी इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन मैं तो बोर्ड पे की तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ, पीछे से कहा किसी ने सर, तो अब मुझे मुड़ के तो मैंने तो पोल ही करना है ना कि बंदों को देखो किसने मुझे इंटरप्ट किया। मुझे बात से पता नहीं लगता कि किसने इंटरप्ट किया। तो दैट वे दिस इज मिक्सचर ऑफ बोथ। Interrupt only happens, this will only become one if any of these events has occurred, and it will come here. It will waste time over here if this is 0. It will waste time over here, it is 0. This only here only comes when the master enable is 1. अगर मास्टर एनेबल 1 है तो यहाँ पे आएगा, बाकी सोर्स को चेक करेगा कि किसने इंटरप्ट किया। इफ मास्टर एनेबल इज 0, तो ये कोई भी इंटरप्ट ही नहीं कर सकता। सो दीज आर कॉल्ड पोल्ड इंटरप्ट। सो समझ आ गई वेक्टर्ड इंटरप्ट्स में और पोल्ड इंटरप्ट्स में फर्क? रोशन, हाँ भाई रोशन, समझ आ गई आपको? जी सर, आ रही है। अपने अल्फाज में बताएं कि वेक्टर इंटरप्ट में और पोल्ड इंटरप्ट में क्या फर्क है, जरा देखें आप। क्या, कैन यू रिपीट the same that I have said? This is a special ability to understand something and then to technically repeat that. Anyone? उमैर, फकाउर रहमान, रोशन आप करेंगे या उमैर से पूछूं? उमैर, difference between polled interrupts and vectored interrupts. उसामा आलम,
यस सर। हाँ, एक तो जाग रहा है, यस सर का है। डिफरेंस बिटवीन पोल्ड इंटरप्ट्स एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। सर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स पे जैसे ही इंटरप्ट आता है तो वो जिस भी सोर्स से आता है, जैसे एक्सटर्नल या फिर कीबोर्ड या कुछ, तो उसकी ऑलरेडी हमारे पास टेलर्ड एक उसका क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वो ही डायरेक्ट प्रोसेसर को जाता है, या एड्रेस बेसिकली। और पोल्ड में इंस्ट्रक्शन सर जो इंटरप्ट वेक्टर होता है, इंटरप्ट वेक्टर कहेंगे आप। इंटरप्ट वेक्टर से वेक्टर इसलिए कहते हैं कि वो जो भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, जो पॉइंटर होता है जो उस इंस्ट्रक्शन का, जहाँ जहाँ पे पहले उसको पॉइंटर को वेक्टर कहते हैं। सही है सर। वो हमारे पास एक वो पूरा सेट होता है हर टाइप ऑफ इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है वेक्टर सब के, तो जो भी इंटरप्ट आया उसका वेक्टर जाता है और उसकी इंस्ट्रक्शंस पर कैरी आउट होती हैं। और पोल्ड में होता है कि इंटरप्ट पहले आता है और फिर हमारी पोलिंग प्रोसीजर फॉलो होता है, जैसे ऊपर आपने लिखा हुआ है वॉइड इंटरप्ट माई ISR, फिर वो सारे बारी बारी चेक करता है, इफ TMRO, इफ एक्सटर्नल इंटरप्ट या फिर जोन सा भी इंटरप्ट। ऑलराइट, वेरी गुड यार, तालियां इनके लिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखते हैं कोई और भी इसको कोई और रिपीट कर सकता है जी। राइट, सैफुर रहमान, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। अब बताएं नॉन मास्केबल और मास्केबल इंटरप्ट में क्या फर्क है? सर सर मास्केबल इंटरप्ट ये होते हैं ना कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह जो हमारा मास्टर इनेबल है, इसको अगर करेंगे ना तभी मास्केबल इंटरप्ट जो है ना प्रोग्राम को इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर ज़ीरो होगा मास्टर इनेबल तो फिर जो है ना कोई भी इंटरप्ट प्रोग्राम को जो है ना डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो होते हैं जो होने ही होने होते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी कि अगर हमारा प्रोसेसर बिल्कुल ही जो है ना उसकी वोल्टेज कम होना शुरू हो जाती है तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आ जाते हैं और कुछ जो वेरिएबल डाटा होता है वो सेव कर लेते हैं। यार ये कमाल कर दिया आपने सैफुर रहमान, आई एम सो हैप्पी, वेल डन। थैंक यू सर। बस एक बहुत चीज अच्छा है यार। कि पोलिंग क्या होती है? पोलिंग होता है किसी से बार बार पूछना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है अब सर। ये और इसमें भी पोलिंग हो रही है ना ये पोल्ड इंटरप्ट्स में, कि हर यस सर। डिवाइस से आप पूछ रहे हैं कि तुमने तो नहीं इंटरप्ट किया, बाय चेकिंग कि उसका इंटरप्ट फ्लैग 1 तो नहीं हुआ हुआ, और टाइमर ओके। जीरो इंटरप्ट जीरो का फ्लैग 1 तो नहीं हुआ हुआ। हर एक को आप पूछ रहे हैं किसने 1 किया है। यहाँ तो कोई भी 1 हो सकता है ना, यस सर। लेकिन आप सॉफ्टवेयर में जाके फिर पूछते हैं कि किसका इंटरप्ट फ्लैग 1 हुआ है। जिसका 1 हुआ है इसका मतलब कि उसने आपको तंग किया है। फिर आप उसको 2-4 लपड़ लगाते हैं और फिर वापस अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। यूजुअली इंटरप्ट्स आर kept to very very small. Usually they just change some variable, global variable, and return. So that's their responsibility, not to hog the processor for very very long time. ओके एंड सर। प्रोसेसर में ये होता है कि मेन हम कोशिश करते हैं हर काम किसी इंटरप्ट में हो। मेन बेस्ट मेन इज वेयर यू ओनली हैव वाइल 1, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टू। कोई और क्वेश्चन? जैनब समझ आ गया आपको? जैनब साहब जी सर। कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तो नहीं सर। राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।